हेलो बच्चों, आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल यानी कि 3D, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। According to this diagram, here x-axis, y-axis and z-axis and O be the origin. So we find the equation of AB which passing through a single point A, whose vector is A vector and A point. The equation of a straight line is passing through the point A, whose position vector is A vector, and here we consider a variable point P, whose position vector is R, and we know that AB vector is equal to OP minus OA. OP means R vector, OA means A vector. So AB vector is R minus A vector, and this line AB is parallel to a vector B. It means AB vector is parallel to B vector. Then AB is equal to lambda B. We know that when two vectors are parallel, then their direction ratios are in proportion. So AB vector is equal to lambda B vector. It means R minus A vector is equal to lambda B vector. So R vector is equal to A vector plus lambda B vector, and this is equation of straight line in vector form. This is the required equation of a straight line which passing through a point and parallel to a vector. अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करें? कार्टेशियन फॉर्म में तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, we know that R vector is xi plus yj plus zk, and A vector is x1i plus y1j plus z1k, and B vector is parallel vector. We consider it is ai plus bj plus ck, and ai bj ck. Here A, B, C are the direction ratios of parallel vector. So, using this equation, we get R minus A vector is equal to lambda B vector. It means R minus A. So, we get x minus x1i, y minus y1j, plus z minus z1k is equal to lambda ai plus bj plus c. Now comparing the coefficients of I, j and k, we get x minus x1 is equal to lambda a, y minus y1 is equal to lambda b, and z minus z1 is equal to lambda. From this we get lambda is equal to x minus x1 upon a. By this lambda is equal to y minus y1 upon b, and from this lambda is equal to z minus z1 upon c. And after integrating these three, we get x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, and z minus z1 upon c. This is called Cartesian
equation of straight line, or we can say Cartesian or symmetrical form of straight line. जब एक लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो कंसीडर कर लेते हैं कि वो दोनों पॉइंट्स हमारे, ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन पर, एक ए और एक बी। ये लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है तो यहाँ पर इसके पोजीशन वेक्टर हम ए कंसीडर कर लेते हैं और इस बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम बी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से ए बी वेक्टर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए बी वेक्टर कैलकुलेट होगा ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर से, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और यहाँ पर ही कोई एक अदर पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं पी, जिसका लोकस ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसके पोजीशन वेक्टर हम आर कंसीडर कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसका मतलब ये ओ पी माइनस ओ ए हो जाएगा, बोले तो आर माइनस ए हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ बी पी वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी पी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस बी वेक्टर। तो अभी क्या है कि जो ए बी वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो जब ये पैरेलल हो गए तो हम क्या करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी कर लेते हैं। ठीक है, ए बी मीन्स आर माइनस ए, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शन में होते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो मैं प्रोपोर्शन में मैंने उसको लैम्डा कंसीडर कर लिया है उनका रेशियो। तो लैम्डा ए बी का मतलब हो गया बी माइनस ए। तो आर माइनस ए मीन्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। यहाँ बी और ए दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ a straight line is passing through two points, a vector and b vector. ये तो वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, जल्दी से मूव कर। चलिए आइए पढ़ते हैं हम कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जो हमने ए पॉइंट कंसीडर किए थे वो x1 by 1 और z1 कंसीडर कर लेते हैं, बी पॉइंट हम x2 by 2 और z2 तो बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अभी हमने दो पॉइंट लिए थे तो एक पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट x1 by 1 z1 ले लेते हैं, एक हमसे कोऑर्डिनेट x2 by 2 z2 ले लेते हैं। तो हम जब स्ट्रेट लाइन के जो ए और बी पॉइंट है हमारे पास, इनके अगर हम DRS कैलकुलेट करें तो डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करें तो वो हो जाएंगे x2 माइनस x1 by 2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, जिन्हें हमने ABC कंसीडर कर लिया है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पासिंग थ्रू ए पॉइंट कैलकुलेट किया था, जिसमें x1 by 1 z1 पॉइंट है, DRS थे। तो DRS अब हमारे पास ये बातें आ गई हैं, इसको यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन which passing through two points, and this is called Cartesian or symmetric form of straight line which passing through two points. Just note it. बहुत ही जल्द एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे हम इसी से।